This video we will go for the analytical solution for the voltage across LCR circuit. So now to start with the same diagram as we have discussed earlier in the last video, you have this circuit arrangement, and this is the source of alternating voltage, and this is the resistor of resistance R attached to it, and from this side you have inductor of inductance L attached to the circuit, and this is the capacitor is connected in between the two. So this is called LCR circuit. This is L, C and R. Now the voltage developed across this inductor is, this is L di upon dt, and voltage across the capacitor is V is equal to Q upon C, and this is voltage across the resistor is B is equal to IR. So the applied voltage is, this is equal to epsilon 0 sine of omega t, right? So by the voltage equation for this circuit is, the voltage equation to start with, the voltage equation uh, the voltage equation for this circuit is, so the voltage equation for this circuit is, the voltage equation the voltage equation voltage equation for the circuit is, the voltage equation for the circuit is, so this is L time di upon dt. This is the voltage across the inductor, plus this is voltage across the resistor, and this is voltage across the capacitor, and according to the Kirchhoff's loop rule it should be equal to the applied voltage, so that is V. So this is equation number 1, and I can modify this equation like this: L time di upon dt plus IR plus Q upon C. So now this is, this voltage in instantaneous voltage could be written as Vm maximum voltage, and it varies sinusoidally around plus Vm and minus Vm. So this is equation number 2. So here this I is equal to dq upon dt. We know that now here I is equal to dq upon dt, and then di upon dt is, so di upon dt is the derivative of this part, so this is d square q upon dt square. So use this in equation number 2, and now you can write this equation in terms of charge. So now in terms of charge, this equation 2 is L. Now di upon dt is equal to, this is d square q upon dt square, plus in place of I, this is r time in place of I, you can write dq upon dt plus this q upon c is equal to maximum value of the voltage, and this is vary as a sine wave. So now this is equation number 3. So this equation number 3 is the equation equivalent to the force damped oscillator. This equation, you have studied it in +1. This equation is same as forced damped oscillator.
So you can revise this article also in the 10+1. The solution of the equation is, the solution of the equation is अब आप ये देखिए कि जो एक ऐसा वैल्यू ऑफ चार्ज जिसको यदि हम इसके बीच में सब्स्टिट्यूट करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए, तो दिस इज व्हाट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज। हम सोल्यूशन वही वैल्यू होती है जिसको हम इसके बीच में सब्स्टिट्यूट करते हैं और वो दोनों साइडों को इक्वल कर देता है। सो यहाँ हम अज्यूम करते हैं कि ये इसका सोल्यूशन है कि चार्ज की वैल्यू जो है ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, और ये भी एक साइन वेव की तरह ऑसिलेट करता है, ओमेगा टी प्लस थीटा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। और यदि ये जो Q इज इक्वल टू क्यू एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा इक्वेशन नंबर 3 का सोल्यूशन है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप इसको यहाँ रखिए और ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इससे बराबर हो जाती है। तो जो थर्ड पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन है Q बाई सी, यहाँ तो Q को सीधा रख सकते हो, और इस पार्ट में चार्ज का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेके रख सकते हो, और यहाँ आपको सेकेंड डेरिवेटिव लेके रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज डी क्यू अपॉन डी टी। द फर्स्ट डिफरेंशियल इज, सो जो दिस पार्ट इज कांस्टेंट एंड साइन का जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो होगा कॉस ऑफ दिस इज ओमेगा टी प्लस थीटा, साइन का डिफरेंशियल कॉस हो जाएगा, और उसके बाद फिर दोबारा इस आर्गूमेंट का फिर से डेरिवेटिव होगा। तो जो थीटा है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, उसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, और ओमेगा टी का डिफरेंशियल जो होगा वो ओमेगा होगा। तो इसको आप फर्दर लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू क्यू एम ओमेगा एंड दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। सो now this part you are ready with this part now। अब आपको सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ चार्ज निकालना है। तो सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ चार्ज कैसे निकलेगा, इसको आप अलग कलर से कर लीजिए। देखिए ये आएगा डी क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर, मीन्स इस पार्ट को आपको दोबारा फिर से डिफरेंशियल निकालना है इसका। तो दिस इज इक्वल टू, अब इसमें ये वाला पार्ट कॉन्सेंट है तो इसका डिफरेंशियल इसको आप बाहर रख सकते हैं पहले ही, क्यू एम इंटू ओमेगा। अब कॉस का जो डिफरेंशियल होगा वो माइनस साइन हो जाएगा, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं माइनस साइन एंड दिस इज ओमेगा टी प्लस थीटा, और आगे फिर आर्गूमेंट का जब फिर से डिफरेंशियल आप लेंगे तो थीटा जो है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, तो उसका डिफरेंशियल 0, ओमेगा टी का फिर ओमेगा हो जाएगा, राइट। सो यू आर लेफ्ट विद नाउ माइनस और ओमेगा को आप बाहर निकाल सकते हो, दिस इज माइनस क्यू एम and this is omega square, this is sine of omega t plus theta, right। so अब आप इनको उठाइए, इसको आप इक्वेशन नंबर 5 लिख दीजिए और इस पार्ट को आप इक्वेशन नंबर 6 लिख दीजिए। सो फ्रॉम इक्वेशन 3, 4, 5 एंड 6 इसको आप ऐसे लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 and 6, right we have। अब आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपके पास बच जाएगा L टाइम, इस पार्ट को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये आ जाएगा, आप ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए माइनस क्यू एम ओमेगा स्क्वायर साइन, ब्रैकेट आपको बदलना पड़ेगा, this bracket will look like this, sine of omega t plus theta, this bracket is closed, plus r टाइम, आपको फिर दोबारा वैल्यू रखना है। अब आपके पास वैल्यू आप रखेंगे क्यू एम ओमेगा एंड दिस इज कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, ब्रैकेट क्लोज, और फिर आपके पास आपको वैल्यू रखना है क्यू का। सो 1/c को आप पहले बाहर रख सकते हो, और क्यू का जो वैल्यू है उसका आप रख सकते हो क्यू एम एंड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल है वी एम साइन ओमेगा टी। सो दिस इज अनदर इक्वेशन, इज इक्वेशन नंबर 7। अब आप जरा गौर से देखिए, इसमें आपके पास जो दो पार्ट हैं
this is sin of omega t plus theta and this part is also sin of omega t plus theta. तो आप इसमें से इसको ऐसे लिख दीजिए, sin of omega t plus theta कॉमन ले लीजिए और क्यू एम ओमेगा कॉमन ले लीजिए. आप यहाँ से ले लीजिए क्यू एम ओमेगा एंड यू आर लेफ्ट विद, यहाँ से क्यू एम ओमेगा ले लिया, आपके पास रह जाएगा माइनस एल टाइम ओमेगा एंड दिस पार्ट ये भी आपने कॉमन ले लिया और इधर से आपने ले लिया प्लस, यहाँ से क्यू एम कॉमन ले लिया और एक ओमेगा लिया. तो जिसको आप कॉमन लेते हैं उससे आप चीज़ों को डिवाइड करते हैं. सो यू आर लेफ्ट विद 1 बाई ओमेगा सी और इस पार्ट के अंदर इसमें से आपने साइन दिस इज ओमेगा टी प्लस थीटा. सो ये पार्ट इसके अंदर आ जाएगा प्लस यहाँ से आपने क्यू एम जो है, यहाँ ये ब्रैकेट क्लोज नहीं होगा, सो यू आर लेफ्ट विद, यहाँ से क्यू एम ओमेगा आपने कॉमन लिया है प्लस आप यहाँ से लिखेंगे आर एंड दिस इज कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा. नाउ योर ब्रैकेट इज क्लोज, it is equal to Vm sin of omega t. So इसमें आप ऐसा करिए कि you know this part is equal to xl and this part is equal to xc, right? So हम ऐसा करते हैं z से गुणा करते हैं और z से डिवाइड कर देते हैं. So देखिए qm omega z, this is the impedance of the circuit and you can now divide this. मैं इसको ऐसे लिख दूँ एक्स सी माइनस एक्स एल, ये न्यूमैरेटर में यहाँ आ जाएगा, इसको जेड से डिवाइड कर दीजिए और यहाँ आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा और यहाँ भी आप जेड से डिवाइड कर दीजिए. दिस इज आर बाय जेड, दिस इज कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, राइट? ब्रैकेट क्लोज एंड दिस इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी. सो मूविंग अहेड वी विल हैव, अब आप आगे चलिए, इस पार्ट को आप रख लीजिए, दिस पार्ट इज इक्वल टू सम साइन फाई. इस पार्ट को आप साइन फाई रख लीजिए. ये पार्ट जो है वो साइन फाई के बराबर है और ये पार्ट जो है वो कॉस फाई के बराबर है. ओके, सो आपका जो इक्वेशन है वो कुछ मॉडिफाई हो जाएगा, वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा. ज़रा देखिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, दिस इज द एंगुलर स्पीड एंड दिस इज जेड, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, यहाँ आप लिख दीजिए, ये आ जाएगा आपका साइन फाई एंड साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये आ जाएगा कॉस फाई एंड कॉस omega t plus theta. Now bracket close, this is equal to maximum value of voltage and this is the simple harmonic variation of the sine curve. So this is equal to sin A sin V plus cos A cos B. So you are left with another formula. This is sin A sin B and cos A cos B. Using this formula, this will become cos A minus B. So this is cos, here A is equal to omega t plus theta minus phi. Omega t plus theta minus phi. You can write it like this. So bracket close. This is equal to Vm sin omega t. So now see, if you have to compare these equations, because this is the solution of the problem. So this means that left hand side is equal to the right hand side. This is the value of q we have chosen, q is equal to qm sin of omega t plus theta. If this is the solution of this equation, then left hand side and right hand side are always equal. So ये वाला जो पार्ट है वो वोल्टेज है. इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला पार्ट भी वोल्टेज है, राइट? तो सबसे पहले आप इसको एक कंपैरेटिव जोन में लिख लीजिए. आप इसको यदि ऐसे लिखें, क्यू एम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज
ओमेगा, दिस इज द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, कॉस को आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, ऐसे कर लीजिए आप, यूजिंग जो कॉस को पाई बाई 2 में से यदि थीटा घटाएं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है और ये बन जाएगा साइन थीटा, दिस इज साइन थीटा। सो यदि आप इसको कॉमन ले लें, माइनस इसमें से कॉमन ले लें तो कॉस एक इवन फंक्शन है, तो आप इसको ऐसे भी लिख दें, थीटा माइनस पाई बाई 2, तो वो भी साइन थीटा ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि इस एंगल में से ओमेगा टी, दिस इज यस दिस इज थीटा, सो मैं इसको ऐसे लिखूं कि कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, राइट। तो यहाँ से यदि आप कॉमन लेते हैं तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं, कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, राइट। दिस मीन्स आप इस पार्ट को कैसे ले सकते हैं, इस पार्ट को आप ऐसा ले सकते हैं कि जो कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, okay, so this is equal to sine of omega t, so this part is now, this is sine of omega t, so it is equal to Vm sine of omega t. What does this mean? This means that इसका मतलब ये साफ हो गया कि थीटा और थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई 2, सो थीटा माइनस फाइव की जगह यदि मैं माइनस फाइव बाई 2 लिख दूँ तो ये साइन ऑफ ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। सो हियर वी एम को आप कंपेयर करिए, वी एम वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट वोल्टेज होगा, यदि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब जो वी एम वाला पार्ट है वो इसके बराबर है, ये देखिए क्यू एम ओमेगा इंटू जेड। तो जो वोल्टेज होती है ना आई टाइम आर होती है, यू नो बाय ओम्स लॉ वोल्टेज इज इक्वल टू आई टाइम आर, इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है वो करंट है। इसको मैं आगे फर्दर लिख सकता हूँ, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एंड दिस इज द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। आई एम किसकी जगह लिखा मैंने, आई एम इज इक्वल टू क्यू एम इंटू ओमेगा, सो दिस इज नाउ अंडरस्टूड टू यू। एक पार्ट आपको क्लियर हो गया। दूसरा पार्ट है कि इसमें जो वैल्यू होगा हियर, थीटा माइनस फाइव का जो वैल्यू है वो माइनस पाई बाई 2 के बराबर है। तो थीटा का वैल्यू कितना आया, ये देखिए इसकी जगह यहाँ पाई बाई 2 है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं थीटा का वैल्यू जो आएगा वो है माइनस पाई बाई 2 प्लस 5, राइट। अब आप देखिए कि आपने क्या किया था, आपने कुछ अजम्पशन की है। आपने अजम्पशन ये की है कि मैं इसको यहाँ अब नए पेज पर हम आपको ले जाना नहीं चाहते, ये आगे जाएगा नहीं, नहीं ये आगे जाएगा। तो यहाँ मैं लिखूँ कि हमने लिखा काला कलर कर देते हैं, ये देखिए हमने किया कि जो साइन फाई है उसको हमने लिखा एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन जेड, और जो कॉस फाई है ऊपर देखिए सामने आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, कॉस फाई हुआ आर बाई जेड, राइट। अब बटा कर दीजिए दोनों को, साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा टेन फाइव इज इक्वल टू एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन जेड, और ये आ जाएगा आर इंटू और जेड ऊपर चला जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं दिस इज एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन R. So this is the phi is now the phase difference between the source voltage and the current across the LCR circuit. So this is now clear to you. If you have to find the phase relationship between the source voltage, that is phi is equal to, this is tangent inverse, this is XC minus XL upon R. So one thing that is now very much clear to you, and if Z is the impedance of the circuit, then we have, अब हम यहाँ से हम यहाँ एक और बड़े मज़ेदार चीज़ हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि ये टेढ़ा हो गया कुछ, ओके, so now it is not working, so this may be troublesome for me after some time, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिए आपके हमने देखा था कि जो चार्ज है ये वाला पार्ट जो है वो सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, राइट।
तो जो करंट है I is dq upon dt, so I is that is dq upon dt, derivative of this, and which is equal to qm omega. Now this qm into omega is now the maximum value of the current. So this part is the maximum value of current, right? And this is cos of ओमेगा टी प्लस थीटा. अब आप थीटा की वैल्यू लिख दीजिए यहाँ. ये देखिए थीटा की वैल्यू जो है इसको आप यहाँ रख दीजिए. सो बट यू विल हैव आई इज इक्वल टू आई एम एंड कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा की वैल्यू रखिए प्लस फाइव माइनस पाई बाई टू. तो ये कॉस एक इवन फंक्शन होता है. आप लिख दीजिए आई एम और इसको आप लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस उसमें से घटा दीजिए ओमेगा टी प्लस फाइव आपने घटा दिया. सो ये घटाने के बाद आपके पास क्या बचेगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज साइन थीटा. सो यू आर लेफ्ट विद ये पहले क्वाड्रेंट में चला जाएगा. सो आ जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव. So if Q is the solution, Q is equal to Qm sine of omega t plus theta is the solution of the equation, then the current through the LCR circuit in series circuit will flow like this. I is equal to Im sine of omega t plus 5. So this is the instantaneous value of the current, and this is the maximum value of the current, and it will flow like a simple harmonic wave, sine wave. It will flow like this. ऐसे करके वो फ्लो करेगा जिसमें जो ये वाला वैल्यू होगा वो आई एम होगा एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो आई एम. सो ये रफली आप इसको समझे, स्केल के अकॉर्डिंग तो एक्यूरेट नहीं होगा. सो आई एम इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अपॉन जेड. सो आप लिख सकते हैं इसको, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अपॉन जेड, दैट इज इम्पिडेंस ऑफ LCR सर्किट विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस XC minus XL square. So this is the analytical treatment, analytical treatment or analytical solution for the amplitude and the phase of the current in the circuit, and it agrees with that obtained by the technique of phasor. So I'm happy with this explanation. I hope that you have understood how to drive this expression. So there is not much physics involved in this. So okay, thank you so much. If you have any problem, then you can write in the comment box. Any question, problem, query, you can write in the comment box. Okay.